السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 8 اکتوبر 2020۔ جو سوالات بھی 5 بجے تک آئے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی 2-1 سوال جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ خاص کر شمیم احمد صاحب کا سوال جو ہے وہ وراثت کا، وہ بعد میں مجھ سے اکیلے میں پوچھ لیں کیونکہ لمبا تھا، بہت ٹائم لگتا اس میں، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ بقیہ سارے سوالات جو ہے شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا جو ہم بیان کریں گے وہ وراثت کے بارے میں کریں گے۔ دوسرا پارٹ جو بیان کریں گے انشاءاللہ وہ عام سوالات جو ہیں اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ وصیت کے بارے میں شاید کوئی کنفیوژن ہوا، چاہے میرے بیان کرنے میں یا لوگوں کے سمجھنے میں۔ ایک صاحب نے اس پر جو ہے وہ باتیں لکھی۔ بہرحال وصیت کے بارے میں 2 باتیں بنیادی طور پر جان لیں۔ اگر ایک آدمی نے وصیت کی اور کہ ہمارے مرنے کے بعد ایسا ایسا کیا جائے، اگر اس نے وصیت کی کہ فلاں آدمی کو اتنا دے دیا جائے، فلاں آدمی کو اتنا دے دیا جائے، فلاں بیٹی کو اتنا، فلاں بیٹے کو اتنا، اگر جن لوگوں کا نام لیا ہے اور ان کی آلریڈی شریعت نے حصہ دیا ہے تو اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی وصیت چلے گی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وصیت للوارث، جو اللہ نے حصہ متعین کر رکھا ہے ان کو آپ اپنی طرف سے مزید کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ نہیں لکھ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر دیا جائے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے وصیت میں کہ فلاں کو اتنا دو، بیٹی کو آدھا دے دینا اور فلاں بیٹی کو ڈبل، کچھ بھی نہیں چلے گی وصیت، کیونکہ یہ سب وہ حصے دار ہیں جن کا شریعت میں حصہ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر زندگی میں اس نے وصیت کی اور کاغذی طور پر اپنی وصیت کے تحت رجسٹری کرا دی تو قانونی لحاظ سے یہ ہبہ ہو گیا، گفٹ ہو گیا۔ وہ باپ جس نے کیا یا ماں جس نے کیا اس کو اپنی جائیداد میں گفٹ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر اس نے ناانصافی کی ہے اولاد کے درمیان میں تو اس کو گناہ ملے گا ناانصافی کرنے کا۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں اس نے بس لکھ دیا، رجسٹری کر دی، داخل خارج ہو گیا جس کو کہتے ہیں، یا رجسٹرڈ ہو گیا، تو پھر ایسی شکل میں دوسرے لوگ کوئی بھی اعتراض کریں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا قانونی لحاظ سے۔ اگر انہوں نے ناانصافی کی ہوگی تو اس کا گناہ ملے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اگر سوال آیا ہوا ہے کہ اگر لڑکا موجود ہے تو بھائی بہن کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس بات کو جان لیں کہ اگر مرنے والی یا مرنے والے کے لڑکے موجود ہوتے ہیں تو بھائی بہن مرنے والے کے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ حصہ نہیں ملتا ہے، چاہے سگے بھائی ہوں چاہے سوتیلے بھائی ہوں، کوئی بھائی بہن کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد یعنی نرینہ اولاد لڑکا موجود ہے۔ پوچھا گیا اپنی زندگی میں کسی ایک کو پوری وصیت کر کے مر جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی آدمی نے ایسی وصیت کی کہ میرے زندگی کے بعد پورا مال مسجد میں دے دیا جائے، تو اس کی اگر وارثین موجود ہیں تو اس کی وصیت زیادہ سے زیادہ 33% میں لگے گی، بقیہ اس کی وصیت کو نہیں مانا جائے گا۔ بقیہ جو وارثین ہوں گے ان کو حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مرتے مرتے کا ایسا بھول جانا کہ سارا مسجد کو دے دو، زندگی بھر آپ نے اس مال سے فائدہ اٹھایا، اب جب دوسرا فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا تو تم نے وہ بھی اپنے لیے فائدہ اٹھا لیا کہ مسجد میں دے دیں تاکہ ہمارا اکاؤنٹ چالو رہے۔ یہ جو ہے دوسرے کا حق مار کر کے ہوا ہے، لہذا یہ زیادہ سے زیادہ 1/3 پر 33% پر ہی وصیت لگے گی، بقیہ نہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گود لے رکھا ہے جس کو طالق کہتے ہیں اور پوری جائیداد کی وصیت کی جبکہ مرنے والے کے بھائی ماں باپ موجود ہیں تو کیا حکم ہے؟ اس میں وہی بات ہے، اگر اپنی زندگی میں اس نے جس کو گود لیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے،
अपनी जिंदगी में लिख दिया और रजिस्ट्री करा दिया तो जो भी भाई बहन मौजूद हो गए कानूनी लिहाज से कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो महज ये कहकर मरा है कि मेरे मरने के बाद मैंने इसको गोद ताला है, लिहाजा सारी जायदाद हमारी इस बेटी को दे दिया जाए जो गोद वाली लेपालक बेटी है, तो इसने जो कुछ किया है इसकी कोई वसीयत मानी नहीं जाएगी। अगर वो लोग चाहें तो 1/3 की वसीयत उस लेपालक को दे दे, ये हो सकता है, लेकिन जो भाई माँ बाप जो उनका शरीयत में हिस्सा है वो हिस्सा उनको मिल करके रहेगा। पूछा गया अगर किसी की 2 बीवियां हैं और एक बीवी ये दावा करे कि शौहर ने कहा है कि ये सामान तुम्हारा है, इसका क्या हुक्म है? अगर शौहर ने ये कह दिया कि मेरे मरने के बाद ये एक बीवी से कह दिया या दोनों बीवी से कह दिया, एक बीवी से कहे या दोनों बीवी से कहे, किसी को शौहर की वसीयत बीवी को नहीं लगेगी, क्योंकि बीवी का खुद उसके माल में हिस्सा मौजूद है। अभी मैंने बताया अल्लाह वसीयत लिलवारिस, तो ये बीवी का दावा करना कि ये हमारे शौहर ने हमको दिया है, कहा है मरने के बाद तुम ले लेना, ये बेकार बात है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो चाहे एक बीवी को जैसे बेटी को बोल दे वो भी नहीं नाफिज होगी, क्योंकि बेटी भी वारिसीन में है। जो लोग वारिसीन में है उनके नाम पे वसीयत नहीं की जा सकती। पूछा गया अगर किसी का कोई वारिस न हो तो उसका वसीयत करना कि पूरा माल मस्जिद में दे दे, तो ये सही हो सकता है। अगर कोई आदमी के कोई भी नहीं है, लड़की हो औरत हो या मर्द हो, कोई मौजूद ही नहीं है, वो ऐसे लोग अगर वसीयत कर जाएं कि मेरा पूरा माल मस्जिद में दे दो, तो इनकी वसीयत जो है वो नाफिज हो जाएगी, क्योंकि बकिया कोई क्लेम करने वाला है नहीं, किसी का हक उन्होंने मारा ही नहीं है। ज्यादा अच्छा किया कि उन्होंने नेक रास्ते में खर्चा कर दिया। पूछा अगर किसी ने किसी को कत्ल किया, चाहे जिस नियत से कि ताकि वरासत मिल जाए, जैसे बाप का कत्ल कर दिया बेटे ने, या माँ का कत्ल कर दिया, या बीवी या शौहर का कत्ल हो गया, तो फिर ऐसी शक्ल में शरअन क्या हुक्म है? ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि कातिल जो है ना वो हमेशा वरासत से महरूम हो जाता है। अगर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया इस चक्कर में कि अब्बा जल्दी मर जाए ताकि मैं वरासत पे कब्जा कर लूं, तो जो शरई लिहाज से कत्ल की सजा होगी वो तो अपनी जगह, उसकी बहसिया नहीं है, लेकिन वरासत में इसको 1 पैसा नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह से शरीयत ने बहुत ज्यादा कत्ल को कंट्रोल किया, वरना हजारों लोग बूढ़े लोगों को अपने मार देते ताकि इनकी वरासत जल्दी से जल्दी हमारे कब्जे में आ जाए। अगर मालूम हो जाए कि कातिल ये है और साबित हो जाए, तो कातिल को जिसको कत्ल किया है उसकी विरासत में 1 पैसा भी नहीं मिलता है, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा, पूछा है अगर बाप ने बाप ने बेटों को वसीयत की कि तुम अपनी बहनों को मेरे मरने के बाद कुछ न देना, क्योंकि मैंने उनकी शादी में काफी खर्चा कर दिया है, तो इसका क्या हुक्म है? ये बाप जो कर रहा है ये बहुत बड़ा गुनहगार है, नंबर 1। नंबर 2, बाप ने लड़की की शादी में, अपनी लड़की की शादी में जो कुछ भी खर्चा किया, शरीयत ने बाप को खर्चा करने के लिए कहा नहीं था। तुमने अपने शौक में किया, चाहे समाज की मजबूरी में किया, आपने जो कुछ भी किया उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वसीयत करना कि मेरी बेटियों को कुछ न दिया जाए, बेटों को बोल देना कि तुम लोग बांट लो क्योंकि मैं उनकी शादी ब्याह में काफी खर्चा किया हूं। सवाल ये, बेटों की शादी में भी काफी खर्चा होता है, बेटों की पढ़ाई में भी काफी खर्चा होता है। कभी ऐसी भी वसीयत करे कि बेटियों से कह दे कि अपने भाइयों को कुछ नहीं देना क्योंकि मैंने इनको बहुत बड़ा डोनेशन देकर के एडमिशन कराया है, ये बात तो कभी नहीं बोलता हूं, हमेशा बेटियों के सिलसिले में है। लिहाजा ये बात सख्त गुनहगार है और इसकी वसीयत ये नाफिज भी नहीं होगी। ये मर्द जो लिख करके गया अपने भाइयों बेटों को कि बहनों को कुछ नहीं दें, ये बका कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो शरीयत ने हिस्सा बहनों को मुतय्यन किया है वो हिस्सा उसे मिलकर रहेगा। पूछा गया क्या कोई शख्स अपनी जिंदगी में विरासत तकसीम कर सकता है? जब जिंदगी में कोई तकसीम होती है तो विरासत नहीं कहलाती है, विरासत तो होती है मरने के बाद। जिंदगी में अगर कोई आदमी, खासकर वो वालिद जिनको ये महसूस हो कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरी बेटियों को कुछ नहीं देंगे या अपनी बहनों को कुछ नहीं देंगे, ऐसा वालिद अगर अपनी जिंदगी में बेटियों को दे करके जाए
तो ये बहुत अच्छा है, ये गिफ्ट है। अब इसमें लोगों ने लिखा है कि बाप को चाहिए कि वो बराबर बराबर गिफ्ट दे। शरीयत ने बेटी को एक हिस्सा और बेटे को 2 हिस्सा दिया मरने के बाद, लेकिन अगर वो जिंदगी में करता है तो अगर 2 एक लड़की और एक लड़का और 4 रुपए छोड़ के मरा है तो 2 बेटी को दे सकता है, 2 बेटे को दे सकता है, बराबर करके जाए। कोई जरूरत नहीं है कि वो जो है डबल बेटे को दे और सिंगल बेटी को दे। पिछले सवाल में जवाब में भी गालबन ये बात आई थी। पूछा गया है कि बाप का विरासत में क्या हिस्सा है। देखिए, इस बात को समझ लें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि विरासत मर्दों की तकसीम होती है। हालांकि मर्द और औरत की विरासत तकसीम होने के उसूल में कोई फर्क नहीं है। मरने वाली औरत हो या मरने वाला मर्द हो, देखा जाएगा कि जो मरा है, जो मरी है, उसके बाकी कौन लोग हैं, उस लिहाज से विरासत बराबर होती है, कोई फर्क नहीं होता है। अब बाप, मिसाल के तौर पर एक औरत का इंतकाल हुआ है, शादीशुदा औरत है, मैके में उसका बाप जिंदा है, जहां इंतकाल हुआ है वो ससुराल है। अब ससुराल वाले ये समझें कि ये तो रुखसत होकर के आ गई, बाप का कोई हिस्सा नहीं। बाप का हर हाल में हिस्सा है। अगर मिसाल के तौर पर इसका बाप मौजूद हो और शौहर भी मौजूद हो, बकिया कोई ना मौजूद हो, तो आधा शौहर को जाएगा और आधा बाप को चला जाएगा। तो बाप के जो हिस्से हैं वो 1/6 हैं, यानी 16.6% हिस्सा मिलता है बाप को। और कोई अगर दूसरा असबा मौजूद नहीं रहता है, यानी जिसको जाना चाहिए, जैसे इस केस में मैंने आपको मिसाल दिया कि मरने वाली औरत का कोई बेटा बेटी मौजूद नहीं है, तो बाप को पूरा क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। वो चाहे वो मैके, आप ये ना तस्वूर करें वो मैके में जा रहा है, तस्वूर ये करें कि बाप को जा रहा है। अच्छा, पूछा गया बीवी का शौहर की विरासत में क्या हिस्सा है और शौहर का क्या हिस्सा है। पिछली मरतबा ये बात भी हमारे एक दोस्त ने सवाल में किया था कि महाराज अब आपने बीवियों का हिस्सा बयान नहीं किया, तो मैंने ये कहा कि भाई जो मसला पूछा गया था वो बयान कर दिया गया। चलिए हम उनकी तरफ से बता देते हैं बीवी को क्या हिस्सा मिलता है और शौहर का भी हिस्सा बता देते हैं, क्योंकि फिर बीवी बताएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, शौहर का भी मालूम होना चाहिए ना। पता चला शौहर जो है वो मरहूम हो जाए और महरूम भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीवी का जो हिस्सा है, अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है तो बीवी को हमेशा जो है वो 12.5% मिलेगा, यानी 1/8 मिलेगा। और अगर मरने वाले की कोई औलाद मौजूद नहीं है, न बेटी है न बेटा है, तो फिर ऐसी शक्ल में बीवी को जो है ना वो 25% मिलेगा। या तो 12.5 मिलेगा और या कितना मिलेगा, उसका डबल 25% मिलेगा। इसका उल्टा कर लीजिए, अगर औरत मरी है और शौहर मौजूद है तो मरने वाली के अगर औलाद मौजूद नहीं है तो शौहर को जो है वो आधा मिलेगा। अगर मरने वाली की औलाद मौजूद है तो शौहर को 25% मिलेगा। वहां पे 12.5 और 25 था, यहाँ पे चूंकि ये मर्द है ज्यादा 25 और 50, एक वजह। दूसरी वजह क्या है कि ये जो बीवी के पास माल आया होगा जो बन रहा है, इसमें ज्यादा चांसेस है कि शौहर की कमाई शामिल होगी, इसलिए इसका हिस्सा क्या कर दिया गया, ज्यादा किया गया है। पूछा गया मरने वाला अगर मर्द हो तो भी विरासत तकसीम होती है, और औरत की विरासत का क्या होती है। ये सवाल अभी मैंने जवाब दिया कि लोग समझते हैं कि औरत की विरासत नहीं होती है। औरत और मर्द की विरासत के तकसीम करने में कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ एक जगह फर्क आता है, वो क्या है कि मरने वाली अगर औरत होगी तो शौहर को हिस्सा मिलेगा, और अगर मरने वाला मर्द शौहर होगा तो बीवी को हिस्सा मिलेगा। बकिया माँ बाप बेटे कोई फर्क नहीं है, एकदम बराबर हिस्सा मिलता है। जो मर्द के विरासत में हिस्सा मिलता है वही औरत की विरासत में। पूछा ये मौलाना जिसने बहन को हिस्सा नहीं दिया उसका हुक्म क्या है। अगर वालिद के मरने पर भाइयों ने बहन का हिस्सा नहीं दिया तो ये पूरी जिंदगी हराम खा रहे हैं। अगर खेत है तो खेत में हराम है, बिजनेस है तो बिजनेस में हराम है, घर है तो घर में आप नाजायज, बल्कि अगर फतवा देखा जाए तो आपने बहन के घर पे कब्जा कर रखा है, और कब्जे पे जितनी नमाज पढ़ी जाती है वो कोई नमाज कबूल नहीं होती है।
इस पर फतवा है। जैसे कोई मस्जिद के घर पे कब्जा कर ले, मदरसे के घर पे कब्जा कर ले, बहन के घर पे कब्जा कर ले, किसी दूसरे आदमी की जमीन पर कब्जा करके घर बना ले, ये कोई भी शक्ल अगर है, मकबूजा जमीन पर जो है वो नमाज कबूल नहीं होती। कुछ लोगों ने लिखा है नमाज अदा हो जाती है लेकिन कबूल कभी नहीं होती है। खलीफा जो पांचवें कहलाते हैं वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में से पहले एक वाकया पेश आया कि एक मस्जिद वालों ने चर्च वालों का हिस्सा मस्जिद में मिला लिया जबरदस्ती। इस्लामी हुकूमत थी, कौन बोलने वाला था? दादागिरी में चर्च की जमीन को मस्जिद का एक्सटेंशन करना था, मस्जिद की तौसीक करनी थी, उसमें बढ़ा लिया उन्होंने। चर्च वाले बेचारे खामोश रह गए, बात खत्म हो गई। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बने तो उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसके ऊपर भी जुल्म हुआ है वो सबसे पहले वो केस देखे जाएंगे। ये केस भी आया। जब उन्होंने तहकीक किया तो पता चला कि ये इलाका मस्जिद का, जिस मस्जिद पर क्लेम था उनका कि ये इलाका मस्जिद का जो है वो चर्च का रहा है और इन लोगों ने वहां से चर्च को गिरा करके मस्जिद बढ़ाया है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म दे दिया रहमतुल्लाह अलैह कि जितनी जमीन चर्च की है उनको वापस की जाए, नंबर 1। नंबर 2, चर्च तोड़ने जिस हालत में चर्च को लिया गया उतनी तामीर करके दी जाए। और तीसरा फतवा दिया कि इस इलाके में जितने लोगों ने नमाज पढ़ी अपनी नमाज दोहरा लें। ये लोग जो बाबरी मस्जिद कहते हैं कब्जा, ये समझते ही नहीं मसले को कि बाबरी मस्जिद मुसलमान अगर कब्जा करके बनाएगा तो नमाज ही नहीं होगी। हमारे यहाँ नमाज ही नहीं होती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरीके से, क्योंकि मकबूजा जमीन थी, कब्जा की हुई जमीन, आप नाजायज कब्जा करके घर बना लें, दादागिरी में घर बना लें, जितने भी ऐसे कब्जे हैं, बहन का हिस्सा मार कर घर बना लें, बहन का हिस्सा ना दें घर में, अगर वो माफ नहीं करती बहन तो नतीजा ये निकलेगा कि उस घर में किसी शख्स की, और जब तकसीम नहीं हुआ तो ये भी नहीं मालूम कि ये कमरा बहन का है, पूरे घर में उसका हिस्सा है। या तो आप तकसीम कर दें, कम से कम इतना बता दें भाई इतना तुम्हारा है, या कम से कम इतना बता दें इतनी मालियत तुम्हारी है, कुछ बताएं। लेकिन अगर नहीं किया गया है तो ये हराम है, और ऐसी शक्ल में खेत भी हराम का खाना है और रहना भी हराम का है। सवाल ये है मौलाना कि जो ज्वाइंट फैमिली में हर एक अपना कमाता है और घर में देता है और खर्च भी कर लेता है, और अगर कोई उसमें अपने से अलग जमीन लिया तो क्या उसमें सब शरीक होंगे? अगर उसने, कमाने वाले ने अपने पैसे से कमाया है और उस कमाई को उन लोगों, जैसे दुकान पे 4 भाई बैठते हैं, भाई लोग करते क्या हैं, कैसे होती है गड़बड़ी आपको बताते हैं। अब जब बड़े हो जाते हैं तो भाई लोग धीरे धीरे उसमें से पैसा निकालते रहते हैं, अब आपको बताया नहीं जाता है, या जो बड़ा भाई जिम्मेदार होता है, अभी पूरा बिजनेस बटा ही नहीं है, हर आदमी इसमें से पैसा निकालता रहता है। अब अगर पैसा निकाला गया और ये पैसा हकीकत में चोरी का हुआ क्योंकि आपने बताया ही नहीं, तो जो आपने जायदाद बनाई है क्या आप अपने वालिद को बता सकते हैं कि ये पैसा मैं कहां से लाया हूं? अगर ये बता सकते हैं तब तो ठीक है, आपकी जमीन हो गई, वरना ये जो पैसा आया है ये उसी बिजनेस से आया जो तकसीम नहीं हुआ, ज्यादा इसमें सबका हिस्सा होगा। दूसरी शक्ल ये है कि आदमी जो पैसा उसमें से होना ये चाहिए, असल में इन चीजों को लोग ध्यान नहीं देते। 4 भाई मिलकर कर रहे हैं काम, चारों दुकान पर बैठते हैं, गल्ले पर बैठते हैं, एक बात तय कर लें कि चारों भाई का इसमें हर महीना 5,000 रुपए किराया, वो है तनख्वाह है 5,000, वो 5,000 से जो चाहे कर लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बगैर बताए हुए, बगैर हिस्सा मुतय्यन किए हुए इसमें से धीरे धीरे पैसा निकाल करके करते रहना ये सही नहीं है। पूछा गया है कि वो कौन लोग हैं जो विरासत से कभी भी महरूम नहीं होते। ये बात नोट कर लें कि मरने वाले के अगर वालिदैन मौजूद हैं, माँ बाप, तो ये विरासत से कभी नहीं महरूम हो सकते, इनको हिस्सा मिलना ही मिलना है जिसको आप नहीं देते। लड़का लड़की बांट लेते हैं, अम्मा अब्बा मरने वाले के अगर मौजूद हैं उनका हिस्सा नहीं देते। वालिदैन कभी महरूम नहीं होते। नंबर 2, औलाद कभी महरूम नहीं होती। नंबर 3, मियाँ बीवी कभी महरूम नहीं होते। ये 6 हर हाल में हिस्सा पाते हैं। बकिया का शरीयत ने अलग अलग हिस्सा दिया है, जैसे मैंने बताया कि मरने वाले की अगर नरीना औलाद मौजूद है, लड़का मौजूद है, तो बहन महरूम हो जाती है।
جیسے ماں اگر موجود ہے تو نانی دادی محروم ہو جاتی ہے، باپ اگر موجود ہے تو دادا محروم ہو جاتا ہے، لیکن یہ 6 ہر حال میں حصہ پاتے ہی پاتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ کون کون سی عورتیں ہیں جن کا حصہ شریعت میں متعین ہے؟ بیٹی کا متعین ہے، ماں کا متعین ہے اور بیوی کا متعین ہے۔ ان 3 کا حصہ کیا ہے؟ متعین ہے، ہر حال میں دینا ہی دینا ہے۔ ہاں، یہ جب نہیں رہیں گے تو بھی دوسروں کا، بہن کا بھی حصہ متعین ہے، پھر دادی کا بھی حصہ متعین ہے، لیکن ان لوگوں کا ہر حال میں متعین ہے۔